Alright. Hello students. Well, today we will be beginning with the first chapter, that is chemical reactions and equations. This chapter ये है बहुत सिंपल, लेकिन ये बहुत important chapter है और इसमें से काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं. Alright. So let's see इसको हम कैसे करेंगे. So this is chemical reactions and equations. So first of all, let us write, that is chemical reactions क्या होता है. Chemical reactions हम किसको कहते हैं, है ना? So chemical reactions को, how we will define chemical reactions, that when any substance, alright, any substance with its inherent properties reacts and new substance is formed which has different properties. We will call a chemical reaction. Alright, we will call it a chemical reaction. Very good. Now see, when a substance, कोई भी सब्सटेंस है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इनहेरेंट प्रॉपर्टीज हैं उसकी अपनी. अब इस सब्सटेंस को ये या तो खुद डिकम्पोज करे या किसी और दूसरी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करे और फिर एक नया प्रोडक्ट बने. और जब ये नया प्रोडक्ट बनेगा तो ऐसे हम रिएक्शन को कहेंगे केमिकल रिएक्शन. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. आई थिंक इट विल बिकम क्लियर फॉर अस. इसका एक एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, जैसे हमने मिल्क रख दिया. ऑलराइट, मिल्क को ओवरनाइट रख दिया या 1-2 दिन रख दिया तो व्हाट विल हैपन? मिल्क विल टर्न सार, है ना? सारिंग ऑफ मिल्क, मिल्क विल टर्न सार. और वी कैन राइट दैट रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन को अगर हम मॉइस्चर में, एयर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? रस्टिंग ऑफ आयरन. एक रेड कलर का बन जाएगा उसके ऊपर कोटिंग, दैट इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. अगर हमने एप्पल को कट करके रख दिया तो क्या हो जाएगा? एप्पल टर्निंग रेड. ऑलराइट, सो ऑल दीज रिएक्शंस दे आर ऑल केमिकल रिएक्शंस. क्यों? क्योंकि एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है. मिल्क इज नॉट सार. Alright, now this milk, it has turned sour. That means its properties has changed. Iron, it has got different color, metallic color. Now when it is rusting, that means a new compound is formed. Apple, as such, apple is white color, alright, green color. So now when it is turning red, that means some reaction is taking place with the air and a new product is being formed. So we say that chemical reaction has taken place. Alright, now let us see something else which creates some confusion. That is, say supposing if we write melting of candle. Alright, that is candle. Candle is made up of wax. This candle, it melts. So when it melts, this is known as, then no new compound is formed. So this will be known as a physical change. Alright, this candle on cooling, it will solidify. Similarly, what we can say, that is melting of ice. This is also a physical change. But when we say burning of candle,
then this will be a chemical change. Alright, very good. Now, from here we have understood the meaning of chemical change. Alright, now let us see that chemical change, what or by we have some parameters by which we can identify that yes, a chemical reaction has taken place. What all parameters we will have? Alright, so we can write, that is characteristics of a chemical change. Now, characteristics of a chemical reaction. See what all characteristics we will have. First is, we can write, that is evolution of gas. Alright, some gas is being evolved. How? Let us see. Say, supposing if we keep zinc granules, alright, and we add an acid to it, alright, then what we will observe, that some reaction is taking place, and this zinc, this will change into white powder, which is zinc chloride. Say, supposing if the acid is hydrochloric acid, then this will change into zinc chloride and hydrogen gas is released. Fine. Now say, supposing if I have sodium carbonate, again I am adding hydrochloric acid to it. What will happen? This will become sodium chloride, and this will become sodium chloride, and carbon dioxide gas will be given out and water will be given out. So how do you test for hydrogen and carbon dioxide? This is just an identification. I'll tell you afterwards also what type of questions, important questions you get from this, and how you will identify hydrogen and carbon dioxide. Alright, I will tell you over here only. Say, supposing, how can you identify for hydrogen and carbon dioxide? Alright, say identification for, say if I write hydrogen, hydrogen is a gas, it burns itself. Alright, so when a burning candle is put near the mouth of the test tube from where this hydrogen gas is coming out, then its flame is put off with a pop sound. Okay. हाइड्रोजन गैस जैसे ही हमने जिंक लिया, ठीक है, जिंक में थोड़ा सा अगर हमने एसिड डाला, एक रिएक्शन होगा, ठीक है, हमें नजर आएगा कि कुछ रिएक्शन हो रहा है, एक गैस निकल रही है. अब वो गैस निकल रही है ना, हमने क्या किया, एक कैंडल लाइट करके लेकर के आए. अब उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के आगे जैसे ही हम कैंडल रखेंगे, दैट कैंडल विल बी पुट ऑफ विद द पॉप साउंड. सो दिस इज एन आइडेंटिफिकेशन कि गैस जो निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है. फाइन. अच्छा, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखो. कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या करेंगे, दैट इज इस गैस को हम व्हेन द गैस is passed through lime water, it turns milky. लाइम वाटर मिल्की टर्न कर जाएगा. ठीक है, ये हम और आगे जब हम मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ेंगे तब उसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे ये सब रिएक्शंस को. ठीक है. सो व्हेन अभी हम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि एक गैस निकली. अब ये गैस कौन सी निकली,
अगर ये गैस लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर रही है तो दैट मीन्स दिस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर ये किसी इसको कैंडल को पॉप साउंड के साथ पुट ऑफ कर रही है तो दैट मीन्स दिस गैस इज हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब ये एक हो गया कि भाई अगर कोई गैस निकल रही है तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली एक केमिकल रिएक्शन इज। ठीक है, अच्छा दूसरा सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब पहले तो ये समझे हम कि प्रेसिपिटेट कहते किसको हैं। प्रेसिपिटेट क्या चीज है, प्रेसिपिटेट क्या है, दैट इज जब कोई भी एक लिक्विड होगा, रिएजेंट हमने लिया, एक लिक्विड रिएक्शन हमने लिया जो कि लिक्विड फॉर्म में है, उसको हमने टेस्ट ट्यूब में लिया और इस टेस्ट ट्यूब में से सपोजिंग ये एक टेस्ट ट्यूब मैंने बनाई और इसमें मैंने क्या लिया, मान लो मैंने इसमें लिया लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, डिसॉल्व कर दिया लेड नाइट्रेट को वाटर में, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया। ठीक है, इसमें मैंने डाल दिया इसको ऊपर से एक दूसरी टेस्ट ट्यूब के साथ, दूसरी टेस्ट ट्यूब में इसमें पड़ा हुआ है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड इसमें हम रिएजेंट डाल रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर एक येलो येलो कलर का सेमी सॉलिड फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट आ जाएगा। ठीक है, दैट इज ये प्रेसिपिटेट होगा क्या चीज का, लेड आयोडाइड का। लेड आयोडाइड इसका फॉर्मूला ये होता है, सो दैट इज वी विल बी गेटिंग लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड, येलो कलर का लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट कर जाएगा एंड इसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। दैट इज प्रेसिपिटेट क्या हो गया, दैट इज एनी सेमी सॉलिड that any semi-solid that separates out from a solution on adding a reagent। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, नाउ लेट अस सी इसके एग्जांपल्स देखें हम, क्या क्या एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं, है ना, क्या एग्जांपल होगा, दैट इज अभी हम प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की ही बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीपीटी भी कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सो इसका एक एग्जांपल मैंने दिया आपको, ये इसके ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट है, इसमें हमने डाला पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड डाला। ठीक है, लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड डाला। पहले लेड नाइट्रेट का कलर क्या था, ये कलरलेस था, जैसे पानी का कलर होता है ना, ऐसे कलरलेस था। ठीक है, अब इसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड डाला तो अब क्या हो गया, इसमें बन गया लेड आयोडाइड। ठीक है, लेड आयोडाइड इसका बन गया प्रेसिपिटेट, लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बन गया और ये बन गया पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, अभी हम आगे आएंगे इक्वेशन में भी। तो अगर हम इसको, इक्वेशन क्या होता है, सिंबॉलिक फॉर्म, इसको मैं अभी और डिटेल में बताऊंगी। इसका अगर हम इक्वेशन लिखें तो लेड नाइट्रेट कैसे लिखेंगे, लेड का सिंबल होता है Pb और NO3 नाइट्रेट का होता है। लेड की वैलेंसी होती है 2, तो इसको हमने कर दिया 2, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1, यहाँ पे हो गया 1, PbNO3। ठीक है, इसमें हमने डाला पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1, आयोडीन की भी वैलेंसी होती है 1, दिस बिकम्स पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, अब हमने बना लेड आयोडाइड, तो लेड आयोडाइड बना। आई हैव टोल्ड यू दैट लेड की वैलेंसी होती है 2, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, PbI2। ऑलराइट, और ये बन जाएगा KNO3, तो इसको हम कर दें
2KNO3, है ना। तो ये हो गया मेरा येलो कलर का प्रेसिपिटेट। दिस इज येलो कलर प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट आएगा। लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट आएगा। अच्छा, ये रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक रिएक्शन देखें और एक दूसरा एग्जांपल देखें। दैट इज, अगर हमने कोई क्लोराइड लिया, जैसे सोडियम का क्लोराइड लिया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड लिया, इस सोडियम क्लोराइड में हम डालेंगे बेरियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में, एक मिनट, सोडियम क्लोराइड में हम डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट, हम डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो जैसे ही हम सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, तो व्हाट वी विल बी गेटिंग, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। इस फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसका हम एग्जांपल देखते हैं। प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी भी कहते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में एक क्या इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि हमने लिया लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट जो है ये कलरलेस होता है, पानी की तरह कलरलेस होगा। अब लेड नाइट्रेट में हमने डाला पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्या चीज का, लेड आयोडाइड का, येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज ऑब्टेन्ड, ऑलराइट। और दूसरा इसके साथ क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट तो सॉल्यूशन में रहेगा, है ना, और लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। इसको एक इक्वेशन फॉर्म में अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, लेड, और लेड की वैलेंसी होती है 2, ठीक है। तो लेड और नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1, तो लेड नाइट्रेट हम ऐसे लिखेंगे, लेड नाइट्रेट, और इसमें हमने डाला पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1, आयोडीन की भी वैलेंसी होती है 1, तो ये हो गया, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेड आयोडाइड। लेड की वैलेंसी है 2, तो ये हो गया लेड आयोडाइड, और ये बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, ये अभी आपको बताएंगे अभी नेक्स्ट उसमें कि आप कैसे इसको बैलेंस करोगे, ठीक है। सो दिस इज 2 ओवर हियर, और इसको हमने इसको 2 कर दिया। लेड आयोडाइड, इसी का ही प्रेसिपिटेट आ जाएगा। प्रेसिपिटेट को हम एक डाउन एरो से दिखाते हैं, और ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, ठीक है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं प्रेसिपिटेट का। जैसे अगर हमने क्या लिया, मान लो अगर हमने H2SO4 लिया, ठीक है, H2SO4 लिया, इस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं हम इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में हम क्या करें, हम इसमें थोड़ा सा बेरियम क्लोराइड डाल दें। बेरियम क्लोराइड, ये भी कलरलेस है और ये भी कलरलेस है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड डाल दें। बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, ये आ जाएगा हमारा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, और इसको जब आप बैलेंस करोगे तो यहां पर आ जाएगा 2HCl, 2HCl, ठीक है। हमें एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया H2SO4 का, इस जगह पर कोई भी सल्फेट हो सकता है। अगर आप Na2SO4 डालेंगे, K2SO4 कुछ भी डालेंगे तो भी आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द प्रेसिपिटेट। अच्छा, अब हम तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, है ना। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, दैट इज चेंज ऑफ कलर। कलर चेंज कर गया, ठीक है, सब्सटेंस का कलर चेंज कर गया। जैसे इसमें हमने क्या किया,
हमारे पास है एक एसिड होती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। आगे आप पढ़ोगे क्या क्या चीज में नेचुरली फाउंड होती है ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटोज में भी ऑक्सैलिक एसिड होती है, ठीक है। तो ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड में हम डाल दें पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। अब ये ऑक्सैलिक एसिड ये तो होती है कलरलेस, पोटेशियम परमैंगनेट ये होता है पर्पल कलर का, ठीक है, पर्पल कलर का होता है। अब जैसे ही आप पोटेशियम परमैंगनेट में ऑक्सैलिक एसिड डालोगे तो ये इसको कलरलेस बना देगा, कलरलेस सॉल्यूशन बना देगा, ठीक है। दैट मीन्स अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, it will turn colorless, so that is a chemical reaction has taken place। और कुछ अगर हम एग्जांपल लें इसमें, ठीक है, जैसे अगर हमने क्या किया, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन जो है दिस इज, इसका कलर होगा लाइट ग्रीन, ठीक है, इसका कलर होगा लाइट ग्रीन। फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हमने, इसका कलर होता है लाइट ग्रीन। इस फेरस सल्फेट को सॉलिड फेरस सल्फेट को अगर हमने हीट किया, ठीक है, इसको हम हीट करेंगे, फेरस सल्फेट को अगर हम हीट करेंगे, ये हीट की साइन होती है, तो फेरस सल्फेट को जब आप हीट करोगे तो ये बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर होगा और इसके साथ कोई गैस निकलेगी जिसको हम कहते हैं SO2 और SO3, ठीक है। अब इस SO2 को अगर आप दिखाओगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में अगर आप पास करोगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये होता है ऑरेंज कलर का, ठीक है, तो ये इसको बना देगा ग्रीन कलर का, ठीक है, ये इसको बना देगा ग्रीन कलर का। सो दिस इज एन इंडिकेशन कि केमिकल रिएक्शन हुआ, कलर चेंज हो गया, ऑरेंज से ग्रीन हो गया, यहां पर भी हमने हीट किया इसको, लाइट ग्रीन से रेडिश ब्राउन हो गया। दैट मीन्स अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ऑलराइट, सो अब तक आपने कितने पढ़ लिए, दैट इज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, देन प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन एंड चेंज ऑफ कलर। ऑलराइट, देन आफ्टर दैट नाउ सी, जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा ना, देयर विल ऑलवेज बी चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज क्यों होगा, देखो जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे A-B है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, A और B में कोई बॉन्ड है तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, A-B है, ये C-D है, ये दोनों आपस में अगर रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या AC प्लस BD ऐसे करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A और B के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, C और D के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, A और C के बीच में बॉन्ड बन रहे, B और D के बीच में बॉन्ड बन रहे। तो इस बॉन्ड की अपनी एनर्जी, इसकी अपनी एनर्जी है ना, तो इन दोनों के बॉन्ड के टूटने में और बनने में देयर विल बी एन एनर्जी डिफरेंस, और इसी डिफरेंस में टेम्परेचर, दैट इज हीट इज इधर लिबरेटेड और हीट इज एब्सॉर्ब्ड, ठीक है। तो दैट इज देयर विल बी, अब 4th कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, दैट इज टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज, अब टेम्परेचर चेंज में 2 तरीके के होते हैं, या तो ये टेम्परेचर लेगा, ठीक है, या नहीं तो फिर टेम्परेचर देगा, ठीक है। चेंज ऑफ टेम्परेचर में वी हैव 2 टाइप्स, वी विल बी राइटिंग, ईदर इट विल बी अ एंडो thermic reaction, ठीक है, endothermic reaction means this will absorb
absorb heat. ऑलराइट, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, टेम्परेचर चेंज हुआ, उसका हीट एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रिएक्शन का टेम्परेचर कम हो जाएगा. ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करेगा तो रिएक्शन का टेम्परेचर कम हो जाएगा. सिमिलरली अगर हीट लिबरेट करेगा तो देन देयर विल बी अगर हीट लिबरेट करेगा तो देयर विल बी इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखें, डिक्रीज इन टेम्परेचर, और यहां पर हम क्या लिखें, इंक्रीज इन टेम्परेचर. जैसे आप सब ने देखा होगा, एक सिंपल सा एग्जांपल ले, चूना तो सबने देखा है ना. चूना को केमिकली क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, इसको हमने पानी में डाला. ठीक है, जब पानी में डाला तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसको हम कहते हैं स्लेक्ट लाइम. ठीक है, इसको हम कहते हैं स्लेक्ट लाइम. और ऐसा करने में ये देखना खूब सारी हीट, ये जो है ना जहां पर मिक्स करेंगे वो गर्म हो जाएगा खूब, तो यहाँ पे खूब हीट इज लिबरेटेड ओवर हियर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना. ऑलराइट, सो दिस इज टेम्परेचर चेंज. देन आफ्टर दैट lastly we have already done color change, also we have done change in color. Yes, last is change in state. Change in state, fifth point, that is change in state. ठीक है, स्टेट हम जनरली अगर देखें तो मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स है, 3 states of matter. Three states of matter, we say that it is solid, liquid and gas. ठीक है, तो अब कोई सॉलिड है, सॉलिड का स्टेट चेंज कर गया इनटू गैस, सो दैट इज केमिकल रिएक्शन. अब जैसे इसमें एक एग्जांपल देखो, कैल्शियम कार्बोनेट है. कैल्शियम कार्बोनेट बड़े सारे फॉर्म्स में होता है. कैल्शियम कार्बोनेट इज मार्बल ऑल्सो, कैल्शियम कार्बोनेट इज चॉक ऑल्सो, लाइमस्टोन ऑल्सो. कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जिस समय आप हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ऑलराइट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अब कैल्शियम ऑक्साइड तो अभी आपको बताया, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज अ गैस. सो वी विल से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. ठीक है, एक बड़ा अच्छा सा एक्टिविटी है आपको दिखाई हुई है. एक्टिविटी में क्या दिखाया है, देखना. हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन लेते हैं ना, मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं. ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं और इसको हम एक फ्लेम में बर्न करते हैं मैग्नीशियम के रिबन को. तो एक चीज और इसमें एक क्वेश्चन आता है, मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हो तो यू शुड रब the magnesium ribbon before burning. क्यों करते हैं हम इसको रब, क्यों करते हैं, because it contains a thin layer of magnesium oxide. ठीक है, MgO over it. जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन में तो ये क्या बनेगा,
MgO, ठीक है। मैग्नीशियम जो है ये बनेगा MgO, है ना। मैग्नीशियम रिबन है और ये लाइट ग्रे कलर का पाउडर बन जाएगा, लाइट ग्रे कलर का पाउडर बन जाएगा MgO, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन, इसको हमने बर्न किया तो पहले से अगर इसके ऊपर MgO है तो ये बर्न नहीं करेगा, तो हमें क्या करना है, इसको पहले थोड़ा सा रब करना है एक सैंड पेपर से, उसके बाद हम इसको बर्न करेंगे। बर्न करेंगे तो ये बर्न करके ये बन जाएगा MgO, दैट इज लाइट ग्रे कलर का पाउडर बन जाएगा, ठीक है। फाइन, सो दैट इज अगेन द चेंज, इसका स्टेट बदल गया, पहले रिबन फॉर्म में था अब पाउडर फॉर्म में हो गया, सो दैट इज देयर इज अ चेंज इन स्टेट। Fine. So this is all. Now you have learned about 5 characteristics. That is chemical reaction के क्या क्या 5 characteristics हैं। गैस का evolution होगा, precipitate का formation होगा, ठीक है, या फिर there will be a change in color और there will be change in state or change in temperature. Fine. Hello students. Now, up till now, you already know that what chemical reactions are, उसके क्या characteristics हैं, ठीक है। अब हम ये जाने, हमारे चैप्टर का नाम क्या था, chemical reactions and equations, ठीक है। तो अब हम ये जानते हैं कि chemical equation हम किसको कहते हैं, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम था chemical reactions and equations। नाउ केमिकल रिएक्शन हमने समझ लिया। नाउ लेट अस सी व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन हम किसको कहते हैं, है ना। अब अभी तक मैं लिख रही थी, क्या लिख रही थी, लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट में मैंने पोटेशियम आयोडाइड डाला, इसको पूरा स्पेलिंग्स में लिखा, ठीक है। तो हमारे पास लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट आया, पोटेशियम नाइट्रेट बना। अब ये सारा कुछ ना, ये तो दो दो रिएजेंट्स थे खाली, इसको हम बड़े सारे रिएजेंट्स भी होते हैं कभी कभी, तो हम क्या करते हैं, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो इसी को ही जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो इसी को ही हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, दैट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, symbolic representation of a chemical reaction, symbolic representation of a chemical reaction is known as chemical equation। इसमें हम क्या करेंगे, symbolic representation of a chemical reaction, ये तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया that this is equation, ठीक है। और इसको हम लिखते क्या है, that is the substances which are reacting together इसको हम क्या कहते हैं, they are called reactants, ठीक है, and are written on the left hand side of equation, and the substances which are formed, substances which are formed, we call them called products, are written on right hand side and separated by an arrow, ठीक है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में एक एरो होगा, ठीक है, इसी को ही हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब
केमिकल इक्वेशन को हम थोड़ा सा और हम इंफॉर्मेटिव बनाना चाहेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करें, इसको हम केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए टू मेक अ केमिकल इक्वेशन more informative, ठीक है। What we'll do, the states of reactants and products are written in brackets after their formulae, ठीक है। कैसे कैसे लिखेंगे, अगर कोई सॉलिड स्टेट में है तो उसके आगे हम क्या लिख देंगे, छोटा सा s लिख देंगे। अगर कोई चीज लिक्विड स्टेट में है तो उसके आगे हम छोटा सा l लिख देंगे, ठीक है। अगर कोई गैसियस स्टेट में है तो हम इसको g लिख देंगे। इसके अलावा अगर हमने किसी सॉलिड को लिक्विड में डाला, लिक्विड भी कौन से, वाटर में डाला, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, दैट इज हम क्या लिखें, सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, AQ, इसका मतलब होता है एक्वस, ठीक है। AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस स्टैंड्स फॉर सॉल्यूशन विच इज मेड इन वाटर, इसको हम लिखेंगे AQ, ठीक है। ये तो एक हो गया कि हमने स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा हम इसको और इंफॉर्मेटिव बनाना चाह रहे हैं तो हम इसमें क्या लिखें, हम इसमें क्या लिखें, दूसरा, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, दिस इज शोन बाय अ, इसको ऐसे लिखते हैं, evolution of gas, this is shown by an arrow which की गैस ऊपर जा रही है, गैस को हमने एक ऊपर वाले एरो से बता दिया, ठीक है। तीसरा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट अभी हमने देखा, प्रेसिपिटेट क्या होता है, किसी सॉल्यूशन में जब हम कोई दूसरा रिएजेंट डालते हैं, एक से भी सॉलिड नीचे बैठ जाता है, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो जब ये नीचे सेटल डाउन हो रहा है तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, दैट एक प्रेसिपिटेट बना, ठीक है। अब ये तो हो गया एक केमिकल इक्वेशन, है ना। अब केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन, इसको थोड़ा सा हम और इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं ना, तो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो जब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं तो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द राइट हैंड साइड should be equal to the number of atoms on right hand side, है ना, राइट हैंड साइड पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, ऑन द से लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि जितना रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स है उतने ही प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। तो हम इसको ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी इक्वेशन का, जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा NH3, ठीक है, NH3 बनाएगा। अब देखो जरा, यहाँ पर है 2 नाइट्रोजन और यहाँ पर है 1 नाइट्रोजन, तो हम क्या करें, यहाँ पर अगर हम 2 कर दें तो नाइट्रोजन इस तरफ भी 2 है, इस तरफ भी 2 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन इस तरफ 2 है, इस तरफ 6 है, तो इसको भी हम क्या करें, इस तरफ 6 बना दें,
सो दिस इज नाउ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इसके साथ में हम थोड़ा सा इसकी स्टेट्स डाल दें कि ये गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है और ये भी गैसियस स्टेट में है। ठीक है, एक आध और एग्जांपल देखें। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, इसको हमने हीट किया। ठीक है, हीट के लिए हम इस टाइप का ट्रायंगल बनाते हैं कि इसको हमने हीट किया। हीट करेंगे तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये सॉलिड है, तो इसके आगे हमने लिखा सॉलिड और ये हो गया CO2। ठीक है, CO2 दिस इज गैसियस फॉर्म में है और CO2 ऊपर जा रही है, तो इसको या तो हम सिंपली दोनों में से कोई एक चीज लिखते हैं, या तो हम सिर्फ G लिखें या तो हम इसको एरो बना दें। तो दोनों में से कोई एक चीज अगर हम लिखेंगे तो दैट शोज दैट दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बीइंग इवॉल्व्ड एंड दिस इज गोइंग अप। ठीक है, ऑलराइट, देन वी वर टॉकिंग अबाउट कि केमिकल इक्वेशन को हम कैसे कैसे मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। तो हमने क्या किया, एक तो आपको बताया कि दैट इज सॉलिड लिक्विड या गैस, उसकी हमने ये लिख दिया। फिर दूसरा हमने इसको बैलेंस कर दिया। ठीक है, और इन्फॉर्मेटिव बनाना होगा तो हम और क्या चीज कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, दैट इज हीट चेंजेस। हीट चेंजेस लिखे जाते हैं, हीट चेंजेस। ठीक है, तो अगर हम ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो गया कि हमें हीट देनी है, तो हम क्या करेंगे, जो एरो है एरो के ऊपर एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया कि हमें हीट देनी है यहाँ पर। और अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या करेंगे हम, जहां पर हमने जैसे मान लो ये A+B और इसको रिएक्ट किया तो मान लो ये AB बना और कुछ हीट इवॉल्व हुई, तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल को बनाएंगे कि ये हीट इवॉल्व हुई। ठीक है, सो दिस इज हीट चेंजेस, हम बताते हैं इस तरीके से कि हीट चेंज हुए, है ना। अच्छा, समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि कोई कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है, जो कि कैटलिस्ट क्या होता है, जो कि रिएक्शन को फास्ट कर देता है। ठीक है, बट itself does not react, अपने कोई भी रिएक्ट उसका चेंज नहीं होता। ठीक है, अपने इट डज नॉट गो एनी चेंज, तो उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। तो अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है A+B और यहाँ पर अगर हम कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो हम इसका नाम ऊपर लिखेंगे और ये इस तरीके से रिएक्शन को लिखेंगे। ठीक है, सो बाय ऑल दीज थिंग्स वी कैन मेक अ रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। ऑलराइट, नाउ लेट अस सी, एक जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना। तो ये बैलेंसिंग बहुत सिंपल है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, balancing of chemical equation. Alright students, welcome. See, till now we have at least had an introduction कि इक्वेशन हम किसको कहते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इक्वेशन को हम कैसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, है ना। अब उसमें इंफॉर्मेटिव बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, या हम ऐसी इक्वेशन को कहेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में ये भी पढ़ा है कि कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, कि मास इज कंजर्व, ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसी प्रिंसिपल को हम यहाँ पर ओबे करेंगे और किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, सो बैलेंस करने में हम 2-3 पॉइंट्स हैं, इसमें से देखना, इसमें से क्या करेंगे हम, दैट इज द सब्सटेंस which has maximum number of atoms is chosen first। ठीक है, इसको हम पहले चूज करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है।
ठीक है, अब इस मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स में भी, ठीक है, इसमें भी क्या होगा कि हम बड़े सारे एटम्स हैं इसमें, अब उसमें भी एक एटम होगा जिसका कि नंबर मैक्सिमम है, ठीक है। इन दिस सब्सटेंस the atom, or I may say that the element which has maximum number of atoms is chosen first. All right, then it is seen that the number of atoms on left hand side is equal to number of atoms on right hand side. All right, then after that say एक सब्सटेंस को कर लिया, then after that next element is chosen similarly and balanced in the semi-balanced equation. All right, how this is, let us see with an example. I think it will be more clear. Let us see. ठीक है, जैसे सपोज कर लो आयरन है, ठीक है, आयरन में हमने क्या किया, स्टीम डाला, आयरन के ऊपर स्टीम पास किया, ये आयरन बन जाएगा Fe3O4, ठीक है, ये बन जाएगा Fe3O4 और कुछ हाइड्रोजन यहाँ पर लिबरेट हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को मुझे बैलेंस करना है, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें है, Fe3O4, ठीक है। अब इस Fe3O4 में भी हम क्या देखें, Fe3 है और ऑक्सीजन 4 है, ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने की सोचें। ऑक्सीजन 4 है ना, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन किस में है, सिर्फ इसी में ही है, स्टीम में है, तो यहाँ पर 4 है, तो हमने इस तरफ भी लेफ्ट साइड में भी क्या करना है, इसको 4 करना है। लेट अस राइट दिस ओवर हियर, है ना, हम क्या लिखें, यहाँ पर एलिमेंट है ना, और ये एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में कितना है और राइट हैंड साइड में कितना है, तो एलिमेंट हमने सबसे पहले चूज किया ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस करने से पहले लेफ्ट हैंड साइड में कितना था, सिर्फ 1 था, और इस तरफ कितना है, 4 है। देन आफ्टर बैलेंसिंग हमने क्या किया, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरफ 4 हो गया और इस तरफ भी 4 हो गया। वी आर राइटिंग ओवर हियर 4। नाउ दिस इज अ पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन, है ना। अब ये हो गया 4 ऑक्सीजन हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, आयरन। आयरन इस तरफ है, नेक्स्ट एलिमेंट हमने चूज किया आयरन, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट हम चूज कर रहे हैं आयरन। सो लेट्स सी, आयरन यहाँ पर कितना है, आयरन इस तरफ है 3, इस तरफ है 1। So next element we are choosing is as iron. Left hand side we have got only 1 iron. This side we have got 3 iron. So what I can do is this side also I'll make it as 3 after balancing. Alright, after balancing. Then I make it over here 3. If I make over here 3, this side it is already 3. So this becomes 3Fe. 3Fe plus 4H2O, Fe3O4। अब रह गया सिर्फ हाइड्रोजन,
तो हाइड्रोजन रह गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखो जरा, लास्ट में हाइड्रोजन रह गया, ठीक है, हाइड्रोजन रह गया। हाइड्रोजन को हम क्या लिखें, हाइड्रोजन इस तरफ हमारे पास अब है 8, हाइड्रोजन है इस तरफ 8 और इस तरफ है 2, तो इस तरफ मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 4 जा 8, so that is I will have to multiply it by 4 for balancing. So I write over here 4 and now this equation is balanced. Alright, that is Fe 3Fe plus 4H2O. This becomes Fe3O4 plus 4H2. Alright, so supposing we can see some other equations like this way. Some other equations we can see. A simple equation if you see, अगर हम FeSO4 इसको अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, तो ये बनाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. Now let us balance this equation. Alright, now again you can see Fe2O3, maximum number of atoms are present in this molecule, Fe2O3. So let us again write the element. Let us write the element and लेफ्ट हैंड साइड कितने एटम्स हैं इसके और राइट हैंड साइड कितने एटम्स हैं इसके, ठीक है। तो एलिमेंट में सबसे पहले मैंने मॉलिक्यूल क्या चूज किया, Fe2O3। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के, तो मैंने ऑक्सीजन चूज किया यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है मेरे पास, 4। राइट हैंड साइड में ये मल्टीपल इसमें है, ठीक है। तो जब ये मल्टीपल इसमें है तो इसको हम अभी लास्ट में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं आयरन को, देखते हैं जब ये मल्टीपल में है तो, ठीक है। सबसे पहले हम आयरन को देखते हैं, तो आयरन इस तरफ 2 है, इस तरफ 1 है, तो आयरन हमने देखा राइट हैंड साइड में 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। अब इसको ये हो गया मेरा पार्शियली बैलेंस्ड, आयरन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो